اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج ہوت۔ برج ہوت، جس کو انگلش میں پائسز کہتے ہیں۔ برج ہوت کی شخصیت کا بنیادی لفظ مجھے یقین ہے۔ برج ہوت کا نشان مچھلیاں ہیں۔ برج ہوت کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ برج ہوت کا بنیادی عنصر آبی ہے۔ برج ہوت ماہیت کے لحاظ سے زوجس دین ہے۔ برج ہوت کے اندر سیارہ زہرہ کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ برج ہوت کے اندر سیارہ عطارد کو حبوط حاصل ہوتا ہے۔ برج ہوت کا موافق رنگ سرخ ہے۔ برج ہوت کا موافق دن جمعرات ہے۔ برج ہوت کی موافق دھات سلور ہے۔ برج ہوت کے موافق نگینے زمرد، فیروزہ اور لال عقیق ہے۔ برج ہوت کا حاکم سیارہ برج قوس کی طرح مشتری ہے، اسی لیے ان کی بعض خصوصیات مشترکہ ہے۔ البتہ یہ لوگ رومانٹک اور شاعرانہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی قریبی دوست اور ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی محفل مکمل نہیں ہوتی اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ لوگ اتنے عملی نہیں ہوتے، مگر ان کے خیالات مخصوص اور قابل عمل ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک متوازن رویہ وجود میں آتا ہے۔ یہ معاشرے کا درد سینے میں رکھتے ہیں، اسی لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے عملی قدم اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ باعمل اور با کردار ہوتے ہیں، اسی لیے کسی بھی ماحول میں ان کے خلاف لابیز کم بنتی ہیں۔ ان کی اکثر تعداد مسیحا ہوتی ہے، کیونکہ نیت صاف ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں شفا پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ میوزک کے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر کام ایک ترتیب کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے روزانہ کے کام دیکھیں تو ان میں ایک ٹائم ٹیبل کے ذریعے توازن دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان پر بیجا تنقید کریں گے تو یہ آپ سے فوراً قطع تعلق کر لیں گے۔ ذائچے میں اگر دیگر عناصر نحس اثرات رکھتے ہوں تو یہ لوگ لالچی اور خود غرض ہو سکتے ہیں۔ ان افراد کو تھوڑی سی لالچ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوت افراد خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں روشن اور پرسوچ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر ان کی آنکھوں میں جھانکتا رہے تو بھی ان کی گہرائی کے اسرار کو نہیں پا سکتا۔ ان کی زندگی دوسرے افراد کی نسبت متنوع ہوتی ہے۔ وہ زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں اور زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ وہ دائرۃ البروج کے درویش ہوتے ہیں۔ ان کے خواب بھی دوسروں کے خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اندازہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے کہ ہوت افراد کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ ان کے پاس ہر کردار اور ہر موقع کی مناسبت سے ماسک ہوتا ہے، جسے استعمال کرنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ذہین و فطین ہوتے ہیں۔ ان کے خواب اکثر شرمندہ و تعبیر ہوتے ہیں۔ اکثر خواب حقیقت میں درست ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذہن انہیں قبول کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ محبت، تعلقات اور کام کے معاملہ میں ہوت افراد لچکدار اور مسحور کن تخیلات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ جتنا نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ قریب آ جائے تو دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ رہنمائی کی بجائے پیروی بہتر کرتے ہیں۔ یہ مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کی تحقیق کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت پہلو ہوتے ہیں۔ ہوت افراد تصوراتی ہوتے ہیں اور ان کی احساس طبع انہیں برداشت عمل یا گفتگو کے لیے ناموزوں قرار دیتی ہے۔ انہیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کا کھلم کھلا اظہار کر سکے۔
किसी करीबी ताल्लुक में भूत अफराद को इस बात की ज़रूरत होती है कि अपने खुद मुख्तारी के जज्बा को बरकरार रखने की कोशिश करें। बसूरत दीगर दोनों के दरमियान एक मुसावियाना बंधन की बजाय एक ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा जिसमें वो दूसरे की दस्तनगर होकर रह जाएंगे। भूत अफराद का जहन बहुत जदीद खतूत पर सोचता है। दौरे जदीद की नजूम की इस्लाह में भूत अफराद अकरब और हमल अफराद के दरमियान की कोई चीज़ है। इनकी उलझन पैदा करने की आदत, इनकी बहरान अमेज़ फितरत और बका के लिए इनकी सलाहियतें इनके हूती किरदार की निशानदही करती हैं। भूत अफराद को चाहे जाने की चाहत होती है। अचानक जोशो जज्बा में गिर जाने पर वो वहशियाना ढोल बजाने वाले नहीं होते, बल्कि नज़ाकत के साथ सतार बजाने वाले होते हैं। वो हर अंदाज से मोहब्बत करते हैं, मजहबी, रूहानी, अफलातूनी और जिनसी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसर्रत महसूस करते हैं कि जब वो अपने जज्बात की इंतहा पर होते हैं। दरअसल वो इंतहाई तकमील पसंद होते हैं और अपने ताल्लुकात में इसी सिफ्त का मुजाहरा करते हैं। वो अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ खानों में बांटने का रुझान रखते हैं और बैक वक्त मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ताल्लुकात इस तरह निभा सकते हैं कि इनमें से कोई भी ताल्लुक मुतासर ना हो, और इसी तरह वो अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात को अलहदा तस्कीन बहम पहुँचाते हैं। भूत अफराद ऐसे दोस्त और जीवन साथी मुंतखब करने का रुझान रखते हैं जो कि इन्हें मायूस भी कर देते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत में तसव्वुराती आइडियल की तलाश में होते हैं। लेकिन जब इनके आइडियल में कोई खामी निकल आए तो वो गम व गुस्से में मुबतला हो जाते हैं। वो अक्सर एहसास जुर्म का शिकार भी होते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई भी शख्स जो इनसे मोहब्बत करता है, इसे अज खुद मालूम होना चाहिए कि इनकी ख्वाहिशात क्या हैं। रूहानी क़ुव्वतों से माला माल भूत अफराद सूफी अज़म और पुरअसरारियत पर यकीन रखते हैं। वो दुनियावी आफात व मसाइब में ज़िंदगी गुजारने की तवक्का करते हुए अपनी रूहानी परवाज़ को बुलंद करते जाते हैं। वो इस लिहाज से तजाद का शिकार होते हैं कि वो दुख और तकलीफ़ को ज़िंदगी के एक हिस्सा के तौर पर तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग तकलीफ़ का शिकार हों तो वो खुद को मुजरम महसूस करते हैं। वो बसीरत की आंख रखते हैं, लेकिन इस पर कम ही यकीन रखते हैं। इन्हें चैलेंज और तब्दीली की ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन तब्दीली की लहरें इन्हें मुतासर ज़रूर करती हैं। डिप्रेशन इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दरअसल इनका गुस्सा इनकी अपनी ज़ात की तरफ हो जाता है। भूत अफराद में फ्रस्ट्रेशन, ख्वाहिशात, जिनसी सर्दमोहरी का नतीजा गुस्से और परेशानी की सूरत में बरामद होता है। भूत अफराद अपने जज्बात और एहसासात में सरतापा डूबे होते हैं। खौफ, एहसास जुर्म और गुस्से के बोझ तले दबे होने की वजह से वो यही जज्बात दूसरों से भी जज़ब करते हैं और इनके अखराज में दिक्कत महसूस करते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने अंदर अच्छी हिस्स मज़ा पैदा करने की कोशिश करें। वो लोगों की अक्सरियत को अपने एतमाद में ले सकते हैं। भूत अफराद का ताल्लुक खुफिया जज्बात, मनफी एहसासियत, खुद तरसी और ज़ाती नज़रबंदी से होता है। वो पाबंदियों में जकड़े होते हैं। वो बहुत जल्द फरार की तरफ मायल होते हैं। इस सूरत में शराब और दीगर मनशियात इनके मामूल के रास्ते होते हैं। इसी तरह वो कामयाबी से भी गुरेज़ां होते हैं और अपनी ज़िंदगी शेख चिली के ख्वाबों और खुद बीनी की सरगर्मियों में गुजार देते हैं। वो खुद एहतियाती और मसाइल व ताल्लुक़ से वाबस्तगी का एक मुनासिब तवाज़न कायम कर सकते हैं, बशर्तिया कि वो जो दुरुस्त महसूस करें इस पर अमल करें। भूत अफराद ज़ात या इनकार ज़ात दोनों में से एक को मुंतखब कर सकते हैं। जब वो शऊर ज़ात के रास्ते पर गामज़न हों तो ज़िंदगी में कौसो कज़ा के रंग बिखेरते हैं। भूत अफराद में कामयाबी और नाकामी के बारे में इंतहा पसंदाना ख्यालात पाए जाते हैं। भूत अफराद जिस्मानी तौर पर तवाना नहीं होते और इन्हें अपनी मनफी जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें चाहिए कि अपने मनफी जज्बात के अपने जिस्म पर मुज़र असरात को समझें। इन्हें चाहिए कि एक बेहतर निज़ाम अपनाएं जिससे इनके जज्बात का मुनासिब इखराज हो सके।
इन्हें इस बात की ज़रूरत होती है कि इज़्तिराब की बजाय आराम व सुकून को तरजीह दें। सेहत का मतलब होता है कि जहन, बदन और रूह के दरमियान मुतवाज़न रिश्ता हो। इसका इतलाक हर शख्स पर होता है। भूत अफराद बहुत सी चीज़ों के बारे में एहसास जुर्म का शिकार होते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी खुद गर्जी के बारे में एहसास जुर्म में मुबतला होते हैं। यही वजह है कि वो अक्सर ऐसी चीज़ों से इनहराफ करते हैं जो कि मुसर्रत का बायस होती हैं। भूत अफराद को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि वो अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करें। इन्हें चाहिए कि खुद गर्जी को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना सीखें। इन्हें अपनी ज़रूरियात के मुकाबला में दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह नहीं देना चाहिए। इन्हें अपनी शख्सियत की नशोनुमा की ज़रूरत होती है। इनका अखलाकी मयार इतना बुलंद होता है कि वो हमेशा ये तसव्वुर करते हैं कि नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है। भूत अफराद का सबसे ज़्यादा गैर सेहतमंदाना रुझान अपनी ज़ात पर यकीन ना करना है और इज़्तिराब की तरफ फरार हासिल करना है। हर शख्स की तरह वो एक अहम सवाल का सामना करते हैं कि इज़्ज़त नफ्स क्यों कर हासिल की जाए। भूत अफराद को अपनी फितरत के मुस्बत पहलुओं को मजबूत करने के लिए और ये समझने के लिए कि किस बात में ज़िंदगी का मफ़हूम पनहा है, ये तय करने की ज़रूरत होती है कि इन्हें क्या करने की ज़रूरत है। इन्हें ये बात जहन में रखने की ज़रूरत होती है कि वो एक काबिल कदर और काबिल कबूल इंसान हैं। अगरचा हम सब अपनी ज़ात में कोई ना कोई कमी महसूस करते हैं और जो नहीं हैं वो होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी मौजूदा हालत में भी बेमिसाल और काबिल कदर हैं। भूत अफराद को भी चाहिए कि अपनी मुस्बत खुसूसियात बार बार अपने जहन में दोहराते रहें। भूत अफराद के ज़ब्त के पीछे दरअसल मुस्तरद किए जाने का खौफ कार फरमा होता है। बाज़ औक़ात वो बेचूं चरा अहकामात मानने वाले और क़ुव्वत फ़ैसला से महरूम अफराद होते हैं, जबकि दीगर औक़ात में वो बहुत तवाना दिखाई देते हैं। इन्हें इस बात की ज़रूरत होती है कि अपने ख़यालात व एहसासात के बारे में खुलकर बात कर सकें। भूत अफराद अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीख सकते हैं। वो इंसानी हालात की बेहतरी के लिए एक ग्रुप तश्कील दे सकते हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये इनके लिए तख्लीकी और ज़िम्मेदार शख्सियत करार पाने का एक अच्छा तरीका है। हूत औरत। बुर्ज हूत दो मछलियों को ज़ाहिर करता है जो मुखालफ सिमत में तैर रही हैं। हूत औरत के लिए बड़ा मकसद ये है कि वो मुस्बत रास्ते का इंतखाब करें। चूँकि हूत बहती हुई मछली की तरह पानी के बहाव के साथ साथ आसानी से बहना पसंद करती है, इसलिए हूत औरत को अपने ज़रखेज़ तहील और हसासियत को तामीरी अंदाज से इस्तेमाल करने के लिए सहारे और तालीम की ज़रूरत होती है। हूत औरत बेहद मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार होती है। जब तक वो मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से शादर है, तब तक वो एक फूल की तरह खिली रहती है। वो दूसरों के लिए दबाव से आज़ाद माहौल पैदा करती है। हूत औरत शदीद कमज़ोरी के अंदर छुपे हुए आज़ादी के मफ़हूम का नाम है। तज़ाद इसकी शख्सियत का बहुत बड़ा पहलू है और इसके तल्लुकात में तज़ाद इसके अंदर की नुमाइंदगी करता है। वो ऐसे शरीके हयात को पसंद करती है जो इसकी तरफ झुकता चला जाए। वो चाहे जाने की और किसी की हो जाने की ख्वाहिशमंद होती है, ताहम इसकी अना इसे इस बात की इजाज़त नहीं देती। वो तल्लुकात के ज़मन में शशो पंज का शिकार रहती है और इसके बारे में पेशन गोई करना मुश्किल होता है। इब्तदाए शबाब में वो एक नन्ही बच्ची की तरह हो सकती है जो कि अभी बड़े मजबूत मर्द की तलाश में हो जो इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। बाद अज़ां वो ऐसे मर्द की मोहब्बत होगी जो इसे इसकी ज़ात की नमू और नई आज़ादी से हमकनार करने में इसकी मदद करे। रफ़ीक़े हयात के तौर पर हूत औरत वफ़ादार, हसास, ज़िम्मेदार, तख्लीकी और रुजत पसंद होती है। वो थोड़े बजट में घर का इंतज़ाम मोजज़ाती अंदाज में चला सकती है। हूत औरत इन औरतों में से एक है जो अफलातूनी मोहब्बत करना पसंद करती है। दोस्तों, ये थी बुर्ज हूत के हामिल अफराद के बारे में अहम मालूमात। यकीनन
آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم کیسر۔